In the world of AI and technology taking over the world, we tend to miss people centricity and values attached to it. On Let's Talk People, we are talking culture, diversity, community building, and so much more. So join us and let's get talking. Assalamu alaikum ji, welcome back to another episode of Let's Talk People. I am Laraib and we have a very special guest, a very good friend, and actually a boss lady today. She doesn't listen, but she talks a lot. Let's welcome Rimsha. Hi Rimsha, how Hello are you Laraib, doing? I'm good. How are you? आप फाइनली आ गई. जी मैं आ गई. शुक्र है. रिमशा हमारे पास बहुत दूर से आई है. रिमशा हमारे पास लाहौर से फ्लाई करके आई हैं. बहुत दूर से आई हैं और बहुत मुश्किल से. बहुत मुश्किल. टाइम नहीं है मेरे पास. बिल्कुल टाइम नहीं है. मेरा कैलेंडर बुक होता है, रिमशा का कैलेंडर डबल बुक होता है. तो रिमशा खैर हमारे साथ काम करती हैं. The work I do full time at Salsoft, she's a boss for there. She holds accountability for the main channel for one of the companies, because Salsa is a group of companies, right? And then Rimsha has, I don't know how many work. I have no idea. She is all over the place. She has so many businesses. But for today's topic, we have how did we start it? How did she start it? Why is it so important? And what's the fashion industry doing? And why people centricity is so important? So let's start why Rimsha started and how did you start it? Why have I started? Because I think there are very less people like me. Yeah. And we need more of those. Of course. Because the problem is that nobody's thinking these days. They're just rushing into the process of bringing out a business, and that's not okay. कुछ सोच के काम करो ना, कोई तुक को काम करने की. So I started off in my second year. Right. COVID आया था, बहुत बोर हो रहे थे घर पे. I started off as a content writer in a marketing agency. घर से काम करती थी, थोड़े से पैसे कमाती थी, सिर्फ हॉबी के लिए. Right. It wasn't like मुझे बहुत कोई ज़रूरत थी या मेरा बहुत फोकस था कि मैंने बहुत काम करना है. It was just because I was bored and because COVID में सब घर पे बंद थे. वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. I started from a content writer, moved into social media, started off as a social media manager, started with 1 client, 2 client, 3 client, until I started taking out clients myself. Social media से business development तक का सफ़र भी कर लिया और ultimately फिर मैंने सोचा कि जो मैं इतना सब कुछ अलग अलग कर रही हूँ, why not start my own thing and why not take the clients up myself. Of course. So वहाँ से फिर Ask the Village एक group है Facebook का, उधर से मुझे एक client मिली. And she was my first solo client. And I started off from there and mashallah we've done wonders with that brand. उस brand की वजह से मुझे वो confidence आया कि this is what I've started and this is what we can do. So उनका page बना हुआ था, 40,000 उनकी audience थी already build हुई हुई, and she connected with me. She trusted me actually. She was the first person who trusted what I said because मैंने उनको करके तो कुछ नहीं दिखाया था. उनके साथ my journey began 2 years ago in Feb. Right. And अभी तक we've been working, and तब से अब तक her sales have grown, her followers have grown, her social media has become better. Mashallah. And both of us has a sister-like bond. And उनकी वजह से I've got so many more brands. And she refers me everywhere, which is great because मैं publicly लोगों को बता के काम नहीं कर रही. This is the first time I'm even talking about it. I know you from last 8-9 months, and right now when she came to Pakistan, when she came to Karachi, और एक दिन पहले दिन भी मुझे नहीं पता चला, दूसरे दिन बंदी मुझे बता रही है कि ओ शिट मेरा तो कैलेंडर बुक है और मैं तो यही. मैंने कहा 1 मिनट, तुमने तो कहा तुम एक काम के लिए आ रही हो, ये तो क्या कर रही हो? And I was so proud of her actually. I was so proud of you for doing so much at so little time. When you talk about numbers, so she is very, what I like about her is that she's very straight. She's very straightforward. She's very honest, and in a way that she knows her work. When she knows her work, so she really knows her work. So I want to talk about numbers at the moment because numbers के ऊपर आप लोग भी समझने की कोशिश करेंगे. She started from nothing as a hobby, and right now she is running a whole empire of her own. While she does not need it, but she wants it. That's her drive. That's what wakes her up. Talking about Rimsha and her numbers that she have grown with the brands that she work with. Rimsha, what's the number looking like? And what numbers are we talking about in terms of growth? That you More have? than 70% for every brand. Right? Without a doubt. Without a doubt. Yeah. You like it? You like it? Of course. I loved it. Right. So, Rimsha, we know why did you start it. We know how did you start it. How about you tell me what's the core industry that you work with and how many industries have you worked in so far?
So fashion is my main forte. So I feel I enjoy fashion. Right. तो इसलिए मुझे होता है कि मैं ज़्यादातर fashion brands ही पकड़ूँ. Although I have a lot of other brands also. I'm dealing with one of the aesthetic clinics in Lahore. Apart from that, What's I have aesthetic clinic? Aesthetic clinic is जहाँ micro facial surgeries and all of that. Skin की हालत देख रही है? मेरा अपना यही हाल है. मैंने भी recently learned कि actually when I got the brand on board, I was really excited because I got to learn so much. मेरी best friend है आमोज. मैंने उसको फ़ोन किया. मैंने कहा आमोज ये सब कुछ तुम कराती हो, मुझे बताओ ये हो भी क्या रहा है, ये क्या है. एंड शी स्टार्टेड लाफिंग एंड शी इज लाइक तुमने क्या लड़कियों वाला काम पकड़ लिया, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग टॉम बॉय. तो देन शी एक्सप्लेन टू मी कि अच्छा जी लैश एक्सटेंशन ये होती है, लैश लिफ्ट ये होती है. एंड दैट्स वेयर आई लर्नड. इट्स बिन 2 months सिंस आई हैव बीन वर्किंग विद देम. एंड अब ऐसा है कि अगर मेरी क्लाइंट मुझे कहे कि अच्छा रिमशा ये वाली चीज़ है तो आई विल नो व्हाट इट इज़. उससे पहले आई वाज लाइक कि क्या ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ की दुनिया में हूँ मैं. सो या अब एस्थेटिक क्लिनिक है, एक बैग्स का ब्रांड है, बाकी फैशन ब्रांड्स हैं. एंड अभी रिसेंटली आई हैव गॉट अ वेरी स्वीट क्लाइंट. शी इज़ फ्रॉम द US. जुनेरा उनका नाम है, और शी इज़ एन अपकमिंग म्यूजिशियन एंड शी हैज़ अ ब्यूटिफुल वॉइस एंड शी वांट्स टू वर्क एंड शी वांट्स टू ग्रो. सो आई एम वर्किंग विद हर. शी इज़ ऑल्सो अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, तो उसको भी मैं इंजॉय कर रही हूँ. ऑल्दो आई स्टिल बिलीव फैशन मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट काम है, बट आई फील लाइक उसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ. तो अब जब मैं नई चीज़ें लेती हूँ ना तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छा लगता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ नया सीख रही हूँ. Right. Coming back to the podcast and the theme that we have, it's always how people is the core and how important it is to bring them together as a community and to work accordingly. Yeah. What's your thoughts on that? So अभी भी for my marketing agency मैंने सारे students को hire किया है, because I know आपकी student life बड़ी tough होती है and everybody wants कि you know कुछ थोड़ी सी hobby हो जाए side पे, थोड़े से पैसे बन जाएं, यूनिवर्सिटी का खर्चा निकल आए. So I've started hiring students. I have all the employees that I have are either LUMS or LSE graduates, undergrad students. Why LUMS and LSE? मेरे एक्सेस उधर तक की बच्चे, एक्चुअली एक बच्ची NCA की भी है, so it's a mix of it's all. It's not the universities that you're looking for, right? Yeah, and I'm just looking for students. My focus is students, so that you can grow them up. So yeah, because I feel like when I started as a student, now it helped me a lot. When I graduated in my 4th year, I was one step ahead of people who graduated with me, and that was only because I started off as a student. और जिन्होंने मेरे साथ as a student काम करना शुरू किया था, उनको फ़ायदा हुआ है अपनी ज़िंदगी में. उनको बाहर निकलते ही उनको पता था कि क्या करना है. इसी तरह मेरा फोकस स्टूडेंट्स पे इसलिए है बिकॉज जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनको तो कोई भी नौकरी दे देगा ना. उनके पास तो डिग्री है, उनके पास तो CV है, बट व्हाट मैटर्स हियर इज लर्निंग. So you pick up a student, you teach them how to use Canva, you teach them this is Instagram, understand the algorithm, understand how you'll get more followers, and within a period of 2 to 3 months you'll see कि उस बच्चे को 0 से बहुत कुछ आ जाएगा. It's 0 to 1 Peter Watsky की books भी है. So book भी है. So I mumble a lot. You guys know already. Rimsha also know. So I mumble a lot and I'm speaking very slow at the moment, but I'm very hyperactive चल रही होती हूँ. Hypertension. मैं भी कोशिश कर रही हूँ आहिस्ता बोलूँ because मैं बहुत तेज़ बात करती हूँ. Exactly. हम दोनों कोशिश कर रहे हैं. Very alike in a way. That is like God's will. I don't know how I met her and how did I ended up here. 8 महीने पहले तो मैं काम करी थी, नौकरी करी थी रिमशा के साथ. हम दोनों नौकरी कर रहे थे. आज हम बिजनेस कर रहे हैं साथ में. बिजनेस के साथ नौकरी कर रहे हैं. बिजनेस के साथ नौकरी कर रहे हैं और साथ में भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. खैर, सो आई अंडरस्टैंड हाउ पीपल इज द कोर, हाउ इम्पोर्टेंट अपस्किलिंग इज एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज टू स्टार्ट अर्ली. वेरी फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट्स विद, आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हो. क्लाइंट आपको ऊपर से लेकर नीचे तक दिखता है, right? They work on your academics, they work on your credentials, they work on your credentials के साथ साथ they work कि आपका experience कितना है. बिल्कुल. You being so young, right? And you started off at what age? 21, right? So 21 is nothing. Yeah. To them. They want someone के 30 plus हो और उसके बाद experience हो 10 साल का पीछे. इसलिए तो I'm saying कि the client who first trusted me is the reason why I'm doing all of this. Understandable. Because she trusted a 21-year-old with no experience, nothing, running 2 brands. But those clients are very rare, no? वैसे तो clients सर के दर्द होते हैं. But I feel like वो push उधर से आया ना. नहीं, वो that's a different thing. That's your motivation, that's your drive, that's your empowering stage. I understand that. What I'm trying to understand here is that how do you deal with such clients where you have to, I'm we're traveling so often together that I listen to you talking कि उसके साथ there's a difficult client that you're dealing with, right? Then there's another difficult client, there's a difficult employee that you're dealing with.
असाद अल्लाह वाला डील्स विद इट ऑल द टाइम एंड आई अंडरस्टैंड कि कैसे करने, क्योंकि मैं तो अभी हायर करना मैंने स्टार्ट किया था टीम में, तो मुझे तो लोग आते हैं, उनको मैं ट्रेन करती हूँ, पूरे दिन लगाती हूँ उनके साथ, दूसरे दिन वो मुझे कहते हैं जी ये तो बहुत मज़ा नहीं आया। नहीं मज़ा तो उनको बहुत आया, मसला ही कि उनको इतनी मेहनत नहीं करनी, काम मुश्किल है, हाँ ये तो मुश्किल है। तो मैं फिर परेशान होती, मैंने कहा मैं तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के चक्कर में हूँ, राइट, आई एम लाइक आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट हियर, डेफिनेटली मुझे बंदे तो 10 मिल जाएंगे, आई एम ट्रस्टिंग यू विद द थिंग, मैं अपना फ़ोन आपको दे रही हूँ कि आप मुझे हेल्प करो, देना तो नहीं चाहिए, खैर नो ट्रस्ट नो बडी, लेकिन द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज दैट हाउ डू यू डील with people and how do you actually contain yourself? Patience नहीं, patience तो बड़ा आसान है कहना, करके दिखाएं तो मसला है, तो आप करती ही patience practice कैसे हैं? पेशेंस प्रैक्टिस कैसे करती हूँ? माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड माई जिम, दीज आर 3 थिंग्स। जो जब मुझे गुस्सा आया था ना, मुझे पता था मेरा क्लाइंट मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं अपना फ़ोन घर पे छोड़ के खुद जिम चली जाती हूँ, बिकॉज आई एम लाइक आई नीड टू टेक दिस नेगेटिव एनर्जी आउट। उसके अलावा मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, एंड बहुत दफ़ा मैं अपनी अम्मी को बस कंप्लेन करके ना अपना गुस्सा निकाल लेती हूँ, बिकॉज जो भी आती है एंड ऑफ द डे यू कांट से एनीथिंग टू द क्लाइंट एंड you can't even be rude to an employee, because if somebody is rude to me, I'm not gonna like it. So if somebody messes up the work, एक तो यह कि आप उनको प्यार से समझा ही लेते हो कि यार ये इस तरह नहीं होना था, इस तरह होना था, बट समटाइम्स पीपल कीप ऑन रिपीटिंग मिस्टेक्स, बिकॉज कुछ बच्चे, अब जिस तरह मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत चीज़ों में लग जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, किसी और का काम है, उनका थोड़ी कुछ ज़्यादा है, तो इस तरह की चीज़ें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती हैं उनके लिए। क्या it's just a brand, it's just a company, क्या होगा मैक्सिमम उनको जॉब से निकाल देंगे। Why do you think is that? Are they not I feel like aware of the not a challenges? lot of students and people in our generation, especially in mine, सोचते ही नहीं है कि कुछ करने की ज़रूरत है, चीज़ों को सीरियस ही नहीं लेते, बस मजाक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए, लेकिन बैलेंस भी होना चाहिए। कहीं you need to think that you want to be serious, because this is the problem. So when all these students, when you say you need to be serious, you need to see कि आपको क्या करना है अपने लिए। अगर आप नहीं करोगे तो आप एक जगह पे ही रहोगे, you're not gonna grow up. यूनिवर्सिटी से अभी स्टूडेंट्स निकलेंगे, कंप्लेन करेंगे नौकरियां नहीं मिल रही, कोई हमें रख नहीं रहा, एक्सपेक्टेशंस इतनी अप हाई होंगी, दे विल थिंक कि अच्छा विल एंटर अ प्लेस एंड कार्पेट पे हमारी रेड कार्पेट बिछा होगा, हमारे लिए जॉब हमारे हाथ पे पकड़ा देंगे। ऐसे नहीं है, ज़िंदगी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मैं आई वर्क 20 आवर्स, बीच में मैं सोती हूँ, मैं रात को अगर 12 बजे भी सोती हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ के अपनी यूएस की क्लाइंट की पोस्टिंग कर रही होती हूँ, कभी किसी को जवाब देना है, कभी किसी को जवाब देना है। जब आप पाकिस्तान अमेरिका दोनों में काम कर रहे हो, यू हैव टू बी अवेक। बहुत अब यही बात है कि दिस इज़ आवर टाइम टू स्ट्रगल, इसमें हराम करो अपनी नींदें, करो मेहनत, बिकॉज अभी नहीं करोगे तो बाद में जाके 40-45 प्लस में तो आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होगी ना कि आप ये सारी मेहनत करो। राइट, बिल्कुल सही बात। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। Why do you think our generation is so lenient and so cool in a way? एक तो I think that we don't talk more about this, and how important it is, and our generation is so messed up. They're happy faces with a dark history of their own, which they have created, और उसमें वो escape करने के लिए they get indulged into different things that they should not do. I feel like social media का concept जब से आया ना, तो एक competition बन गया है, बस बिला वजह का हर वक्त का कंपटीशन है, फलाना बंदा ये कर रहा है तो मैंने भी ये करना है, वो वहाँ जा रहा है तो मैंने भी वहाँ जाना है। देयर सो मेनी टाइम्स, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, दोनों मुझसे बहुत छोटी हैं, 1 is 7 years younger and 1 is 10 years younger. मुझे ये भी पता था, छोटे बच्चे। That's cute. तो उनको ऐसा लगता है कि जो लोग सोशल मीडिया पे जो कुछ कर रहे हैं वो एक्चुअली भी हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो मेरी अम्मी हमेशा उनको बताते हैं कि बेटा सोशल मीडिया पे बंदा हर अच्छी चीज़ लगा रहा होता है, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन प्रॉब्लम्स। आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे तो नहीं लगाते ना, अच्छी चीज़ें आप लगा देते हो। तो आई फील लाइक आपके बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। ऑल्दो हम भी सेम ही जनरेशन है, मैं नहीं कहूँगी कि हम कोई फ़र्क हैं, बट हम फ़र्क हैं, वी आर अवेयर व्हाट यू डूइंग। हम हैं बट सब नहीं है, तो हर जनरेशन के हर बच्चे इसी तरह हैं। हाँ, आई जस्ट मेंशन मुझे पता नहीं था। It's not because we don't have a bond, it's because we have worked professionally so far that we are not on a personal level yet. Yeah. And I think that's fair and that's accurate. When I talk about professional level, can you explain why professionalism and what is professionalism to you and why is it so important? Because मैं तो थक गई हूँ बता के। वो तो लोग बोलते हैं कि आप बहुत ही बोलती हैं, आपके अंदर खुद कहाँ है। मैंने कहा मैं घड़ी लेके चल रही हूँ और मुझे कह रहे हैं professionalism for me is to meet your KPIs, do what you like, yeah, do it properly, ethically, and
वॉच योर टाइम. मुझे जहर लगते हैं वो लोग जो लेट होते हैं, बिकॉज मुझे ये कि यार मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए बैठी रहूँ. एंड इट्स नॉट बिकॉज आई एम रनिंग अ बिजनेस और व्हाटसोएवर. किसी भी इंसान के पास इतना टाइम नहीं है. हर बंदा, मेरी अम्मी से लेके मेरे अब्बू से लेके मेरे छोटे बहन भाइयों तक, अपनी एक चीज़ साइड पे रखते हैं तो दूसरी करते हैं. सो यू टेल समबडी, ओ आई विल बी देयर एट 3 o'clock and you come at 4. That's not okay. People are not called out for that enough. तो लोग इतनी सोचते नहीं हैं कि अच्छा यार प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. बाकी आई फील लाइक एथिकल और मॉरल वैल्यूज कम फर्स्ट. I'm often being called out कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हैं, बहुत अनफिल्टर्ड बोलती हैं. मेरा भी ये बहुत मसला है, लोग मुझे भी बहुत ज़्यादा कहते हैं. नहीं, आजकल मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो मैं क्रिटिसाइज़ करने लग जाती हूँ. मैं क्रिटिसाइज़ कंस्ट्रक्टिव करती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ भाई तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो तो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग सो दिस इज़ रॉन्ग. एंड दे टेल मी ओह शिट आपने नहीं बताना था. You have to be very sweet coded. I can't do it. I don't have capacity. You don't have to be sweet. Ethical and moral values की जहाँ तक बात है, झूठ ना बोलें. जी, खुदा के लिए आपने काम नहीं किया हुआ, आप बता दें आपने काम नहीं किया हुआ. डॉज ना करें दूसरे बंदे को, उसको सही डेडलाइन दें. इट्स फाइन. सुबह आपको काम दिया, रात तक यू कांट गिव इट, जस्ट से इट आउट दैट यू नो यू कांट गिव इट. I'm working on a job. If I get something that has to be done by 6 o'clock, and if I can't do it, I straight up leave out an email कि यार आज नहीं हो सकता. I'll give it to you tomorrow first thing in the morning. Of course. इतनी सी बात होती है. एक बंदे को आप लटकाए रखते हो, and then what happens is that the employees they don't realize कि दूसरा बंदा आगे किसी को answerable है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एजेंसी में मैं आंसरेबल होती हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ मुझे काम टाइम पे नहीं करके देते, मेरा नुकसान होता है. इसी तरह फॉर माई बॉस व्हेन आई एम एन एम्प्लॉय, मैं काम टाइम पे नहीं दूंगी, उनका नुकसान होएगा. राइट, फेयर इनफ. बी एथिकल. सो वन टाइम पे काम करो, झूठ मत बोलो, मेहनत करो और शॉर्टकट्स ना ढूंढो. सही काम करो. डू यू थिंक देयर आर शॉर्टकट्स? या जितने मर्जी निकाल लो. डू यू थिंक दे वर्क? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, फिर पता चल जाता है कि शॉर्टकट्स इस्तेमाल हो रहे हैं. शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं है, बट सही तरह करो ना. अच्छा, शॉर्ट वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क होता है. दिस बेसिकली दिस. और अगर आप वो फ़र्क नहीं कर सकते ना तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है. शॉर्टकट है कि 1 रुपये से 10 रुपये बनाने. ये 1 रुपये से 10 रुपये बनाना स्मार्ट वर्क. शॉर्टकट है 1 रुपये से 100 रुपये बनाने. And then wanting to do it again and again. Yeah, and it gets you will end up being unethical, unprofessional, and you will compromise on your moral values, which is the core. मेरी 4 core values हैं, जैसे सालसॉफ की हैं. सालसॉफ की 4 core values मुझे बड़ी पसंद है. मेरे ख्याल से सलमान गज़नवी की हैं ये. सलमान साहब की हैं 4 values. It's respect. रिस्पेक्ट, इज्जत. आप अल्लाह आपको इज्जत देता है. बिल्कुल राइट, अल्लाह है आपको इज्जत देता है. आपने बंदों को देनी है, चाहे वो आपको दे या ना दे. तो आप सलाम करें. साथ बड़ा मेरे से करता है. आते जाते ना वो, अगर किसी उसको भी मिल रहा है ना गार्ड को, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है आपकी. आप 2 मिनट किसी से तमीज़ से बात कर लो ना, उस बंदे का दिन बदल जाता है. आपको नहीं पता कौन है कौन नहीं है. गुजरते बंदे से भी सलाम करो. इट्स गुड. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉट. इट्स रिस्पेक्ट, इट्स इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी इज समथिंग दैट यू have it. If you don't have it, you're not existing. That's the truth. Integrity, respect, humility. If you're not humble, अपनी रूट्स को आप भूल गए. कल मैंने आपको बताया ना कि कल मैं अपने स्कूल गई थी. जहाँ स्कूल से मैंने स्कूल से मैंने प्ले ग्रुप से मैंने जो 8 क्लास तक पढ़ा है, मैं उनके पास गई. मैंने सलाम किया. आई मीट दैम. मैं ठीक गपशप लगाई. सारी टीचर्स को मिली जो वहाँ पर प्रेजेंट थे, और बड़े पुराने टीचर्स थे, बड़े खुश हुए मिल के, यू नो. तो रूट्स. बिल्कुल. और वो रूट्स मैं उनको ये नहीं बताने गई थी ओ I've done shit. मैं उनको ये बताने गई थी कि I remember you, you have made me, this is for you, what am I, it's because of you. ऐसा है. ये इसी प्ले ग्रुप में मैंने खेला, इसी मिट्टी में मैं गिरी थी, इसी मिट्टी से चोट लगा के मैं आगे गई. ऐसा ही है. and it's good to not forget where you started from. If you forget, you lost cause. फिर आपके पास गुरूर यहाँ जाता है. ऐसा ही है. So this is respect. I think you have it. You value it. Respect, integrity, humility, and empowerment. You empower yourself enough, then you empower others. So you empower the students that you have. Bilkul. You at some point empower me. I at some point empower you. With all the stuff that we do together. Definitely. Right? Be it work, be it personal, be it professional. We do that. And not because we have a relationship. It's because हमने आगे वो replicate करना होता है.
To some आज आप किसी की मदद करोगे ना, कल कोई आपकी मदद अल्लाह करेगा, ताला रास्ते बना देता और है, उसके आपके बंदे लिए की मदद बिल्कुल, करके तो देखो। क्योंकि आप कहीं से भी कहीं जुड़ जाते हो। अभी भी मैं अगर आज कभी भी मैं बैठ के सोचूं ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि कहाँ मेरी एक दोस्त ने एक रैंडम बंदी से मुझे कनेक्ट करा दिया था कंटेंट राइटिंग के लिए। अगर मैं कभी वो कनेक्ट ना करती तो मैं आज वहाँ ना होती जहाँ मैं हूँ। बिल्कुल, तो ऐसी बात है। वो एक छोटी सी चीज़ थी जो उसने वैसे ही कर दी। उसने भी उस वक्त नहीं सोचा होगा कि ये चीज़ इतनी आगे तक जाएगी, Yeah, लेकिन वो चली गई। बिल्कुल तो रास्ता था ना, बनना था, होना था, होना था, इसलिए हो हुआ। गया। आई थिंक इसमें अल्लाह का बहुत शुक्र है, ही हैज़ बीन वेरी काइंड। एक तो वो ही इज ब्लेस्ड प्लानर, ही इज अ प्लानर ऑफ ऑल, तो वो रास्ते आपको पता नहीं ऐसा ही है, निकल बिकॉज जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर मैं अपने 4th ईयर में जब थी तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था, बिकॉज थीसिस होता है बहुत टफ अच्छा, हो मुझे जाता नहीं है। पता, मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई, अच्छा, LSE में जिस तरह थीसिस होता है आपका तो मुझे फाइनल ये ईयर में, सेमेस्टर्स भी समझ नहीं प्लस आते। LSE बहुत मुश्किल यूनिवर्सिटी जनरली course. भी है, बिकॉज इट्स अ बिट स्ट्रिक्टर देन नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़। आप छुट्टी नहीं कर सकते ज़्यादा, कोर्स से निकाल ले जाओगे वगैरह वगैरह। बट ऐसा है कि 4th ईयर में आके मैंने एक पॉइंट पे सोचा कि यार मैं बस कर दूँ इस सबको करना, मैं पागल हो गई हूँ, मैंने इतना काम कर लिया कि आई हैव गॉन क्रेजी, नाउ आई You कांट were टेक doing दिस। content writing at the time? No, I was running the agency by then. You started your content I writing की started journey? in my And second year. आपका portfolio में आता क्या क्या, मुझे आप वो बताएं। So second year में मैंने शुरू किया as a content writer. उसी को मैंने within 3 months I turned into a social media manager. Right. Third year में मैंने पूरा वो काम किया. When I started my 4th year, I decided to take a step back from the agency and start my own thing. So you started your own marketing agency? Yes. Marketing agency at the age of? 23. At the age of 23, you started 22, 23. 22, 23, while you were in your university. While I was in my university. Right. You started with one client. Yes. And right now you have 8 clients, mashallah. 8 clients, and those clients are well paying, mashallah. And you are responsible for their growth planning, marketing strategy, and so on and Social so media, everything. forth. Yeah, please continue. That's it? Yeah. No, that's not it actually. मैंने portfolio मांगा था. So marketing agency तो mashallah up and running है. Rimsha has been growing and growing and growing. Then she has keen interest in fashion, so she holds a fashion brand, mashallah. Oh yeah. Of course, oh yeah. वो उसको मैं अभी तक सीरियसली ले नहीं पाई। अब मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा कहती हैं कि बेटा कितने लोगों के ब्रांड्स चलाओगी, अपना भी कुछ कर लो। एंड आई टेल हर कि ये जो मार्केटिंग एजेंसी है ना, ये भी अपना ही है। तो शी इज लाइक हाँ ठीक है, लेकिन एक ब्रांड भी कर लो। तो अभी रिसेंटली वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। How much time have you been working on it too? Like since what time? So backstory, this entire brand started as a jewelry brand in my second year. अबे jewelry कहाँ से आ गई? लाहौर में मुझे ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है। ठीक है, मुझे कुछ होगा नहीं होगा, मेरे इयरिंग्स जरूर होंगे। ठीक है, मैं इयरिंग्स की बहुत आई एम अ बिग फैन ऑफ इयरिंग्स। रिंग्स की मैं बिल्कुल फैन नहीं थी, मेरी मंगनी होगी अब पहननी पड़ती है, वरना मैं नहीं पहनती थी। घड़ी एंड इयरिंग्स आर 2 थिंग्स दैट आई वेयर। चेन से कोई दोस्ती नहीं है, बैंगल से कोई दोस्ती नहीं है, रिंग से कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन अब तो मजबूरी है यार। लेकिन बात यहाँ से ही शुरू होती है कि वैसे ही मैंने एक दिन सोचा कि ये भी करके देख लेते हैं। लाहौर में एक मार्केट है होलसेल की, वहाँ से आप ज्वेलरी लो और आप सेल करो। ये मैंने अपना मॉडल बनाया था, बच्ची थी तब मैं, क्या आई थिंक ये फर्स्ट ईयर से भी पुरानी बात है शायद, अब तो मुझे याद भी नहीं है। 19। अरे वी स्टार्टेड, सही है। तो 19 पे मैंने सोचा कि ये कर लेते हैं, आसान काम है, यहाँ से लेना है, यहाँ बेचना है, खुद कुछ नहीं करना, खुद सिर्फ ब्रांडिंग करनी है ना। तो मैंने वेंडर्स ढूंढे शालमी में। मैं गई, पहले मुझे बड़ा लोगों ने कहा कि नहीं बड़ी अजीब सी जगह है, नहीं जाना। कैसे जाओगी? मेरे अब्बू ने कहा जाओ, कुछ नहीं होता, मेरा ऑफिस का लड़का तुम्हारे साथ चला जाएगा, 1-2 दफ़ा साथ जाएगा, तीसरी दफ़ा तुम खुद जाओगी और तुम कहोगी कि ये तो मेरा अपना इलाका है। ऐसा ही हुआ। एक दफ़ा गई, समझ नहीं आई, 2-3 चीज़ें उठाई, लाई, लगाई, अच्छा रिस्पॉन्स आया, बंद कर दिया, लेज़ी हो गई, छोड़ दिया। फिर 2 महीने बाद शुरू किया, फिर मैंने ये करना शुरू कर दिया। ईद पता था ना, ईद पे ज्वेलरी बिकती है, ईद से पहले जाती थी, चीज़ें लेके आती थी, बेच देती थी। बाद में मैंने सोचा कि पता है ये बड़ा मुश्किल काम है कि ज्वेलरी लेने तक जाओ, लेके आओ। मुश्किल था नहीं, वैसे काफ़ी आसान था, बट मैंने सोचा कि यार कुछ इसमें ऐड करते हैं। मैंने अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड की पहले भी बात की थी, आमोज़, शी इज़ वर्किंग एज अ डिज़ाइनर एट मारिया भी। तो उसने मुझे कहा कि मिलके कुछ करते हैं ना, तो मैंने कहा चलो करें, क्या करना है। तो शी इज़ लाइक कपड़े बनाते हैं। वैसे ही शौक चढ़ा। इसी तरह एक अंडर प्रिविलेज दर्जन है हमारे पास, वी वर लाइक चलो उससे ना 2-3 टॉप्स बनवाते हैं, बिकॉज हम अपने लिए बनवाते थे। द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेल्ट इन द पाकिस्तानी मार्केट
जिसकी वजह से आज ये ब्रांड एग्जिस्ट करेगा अब इन फ्यूचर. अभी तो this is a brand you grow. It is a brand, but अभी I have not worked on it. It's a brand without working on it. बस लिसड़ रहा है, अभी घिसट रहा है कहीं. Okay, great. काम नहीं किया. सही है. अब काम कर रही हूँ. कराची का मेरा ट्रिप उसके लिए था solely. मैंने कहा कि इसको करूँगी. नहीं था, सबसे मिलने के लिए भी था, लेकिन obviously क्योंकि मैं ऑफिस के ऑफिशियल ट्रिप से नहीं आई हुई, तो मेरा फोकस ये था कि मैं अपना काम प्रायोरिटाइज करूँ और अपना काम करके जाऊँ. देखो at the end of the day काम वही है जो अपना है. बिल्कुल. ठीक है, मैं इस बात में बिलीव करती हूँ. मेरे अब्बू इज़ अ बिजनेसमैन, उन्होंने अपने आप को बहुत स्क्रैच से बिल्ड किया है एंड उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करके मैं भी एग्जैक्टली वही करना चाहती हूँ. तो हमने खैर 2-3 कपड़े डिज़ाइन किए. लाहौर में एक मार्केट लगती है हरियाली, हमने वहाँ सेल आउट किए. काफ़ी अच्छे हमारे कपड़े सेल आउट हुए. हरियाली मार्केट. या उसके बाद हमने ऑनलाइन थोड़े से बेचे बूचे, सब कुछ किया. फिर छोड़ दिया. अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने बिजी हो गए कि उसको छोड़ दिया. अब मैंने कराची आने का मैंने सोचा कि यहाँ से मैं आके कपड़ा देखूँ, कुछ फ़र्क मिलता है इधर. I'll create something that I want. Everyday office clothes, everyday बाहर जाने के कपड़े. आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में आपको बटन डाउन्स नहीं मिलती लड़कियों के लिए? नहीं मिलती. मिलती हैं तो आदमियों की फिटिंग के लिए मिलती हैं. Exactly. So we decided to finish that gap. So you build a brand. You want to build a brand. Now I'm gonna build a brand. You want to build a brand. You identify the market gap. You have tested your market. You know your market. हमने थोड़ा सा शुरू में हमने ये कहा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बहुत एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं फेंकते. आपने की तो है पीछे जो जूलरी थोड़ी की है ना, यही कह रही हूँ. थोड़ी हाँ यही कह रही हूँ ना, एक्सपेरिमेंट किया है. शर्ट्स में भी एक्सपेरिमेंट किया, 4 पीसेस बनाए, चारों सोल्ड आउट. सब सोल्ड आउट. कलेक्शन पूरी शूट कराया, छोटे बजट पे सेल आउट करा दिया. अब मैंने कहा कि अब पैसे लगाने का टाइम है. देखें, बिजनेस में आप जितने पैसे डालते हैं उसी से आप रीप आउट करते हैं. राइट. सो अब वापस लाहौर जाके ये प्रोजेक्ट शुरू होएगा एंड जब तक आई थिंक ये पॉडकास्ट बाद आएगा, होपफुली मेरी कलेक्शन पहली आ चुकी हो. वो आप आएंगी या दोबारा कराची के आते हैं, मैं लाहौर आती हूँ तो हम दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं पॉडकास्ट के लिए, कोई मसला नहीं. Will do, because people need to know how to build a brand and why is it so important to do your own thing. Why is it so important to do your रिमशा की पर्सनल ब्रांडिंग की तो मैं पर्सनली काम करने वाली हूँ, लेकिन रिमशा की जो ब्रांडिंग है वो खुद संभाल सकती हैं आराम से. शी इज खुद का फील लाइक दैट. यही तो बता रही हूँ कि मेरी अम्मी ने कहा इतने लोगों के कपड़ों के ब्रांड चलाओगी, अपना भी बना लो. अम्मी को शाउट आउट. आंटी ये उन्हीं के लिए है. You have a shout out. और इसके पीछे बड़ी अच्छी कॉस्ट है. Rimsha wants that her mother should have a thing of her own, like अपनी चीज run करने के लिए, which is going to be this brand. Which is going to be this brand and it's connected to a greater cause. That's her drive. So सिर्फ वो नहीं, ये चीज आप कमा लेते हैं, ये चीज या इसमें इस ब्रांड के आइडियोलॉजी के बिहाइंड 3-4 चीजें हैं. एम्पावरमेंट. राइट. हम फीमेल टेलर्स रखेंगे, हमें नहीं चाहिए आदमी. बहुत काम है आदमियों के पास. लिबर्टी मार्केट पूरी भरी हुई है. राइट. हम अभी भी, मैं अगर घर के अपने कपड़े सिलवाती हूँ, हमेशा मेरा एक ही टेलर है नवीद, उसी को फ़ोन करती हूँ, नवीद टेलर कपड़े सी दो. वी नीड टू शिफ्ट दैट. ये सारी औरतें जो इतने घर से काम करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, उनको भी कुछ मिलना चाहिए यार. उन्हें अपना घर चलाती हैं, अपने बच्चे पालती हैं. राइट. सो सबसे पहले इसमें एम्पावरमेंट है फॉर फीमेल्स. होपफुली इंशाल्लाह मैं अपना जब ये प्रॉपर सेटअप पूरा बड़ा हो जाएगा, आई एम गोना हायर देम, आई एम गोना गिव देम स्पेस, दे आर गोना सिट देयर, दे आर गोना स्टिच देयर. सब कुछ काम बहुत नीट होएगा. आई लव इट रिमशा. दूसरा ये है कि मेरी अम्मी के पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उनकी हॉबी हो, जिसको वो इंजॉय करें करते हुए. तो एक दफ़ा ये सेट हो जाएगा, इट्स ऑल फॉर हर. वो ही करें इसको. मेरे पास और बहुत काम है देखने के लिए. एक चीज़ सोलली उनको दे दी जाएगी, वो करें, इसको बड़ा करें, इसको छोटा करें, जैसे मर्जी. इसकी मार्केटिंग सब कुछ मैं करूँगी, शूट मैं करूँगी, कपड़े चलाएंगी वो. हाँ चलाएंगी वो. उन औरतों को हैंडल वो करेंगी, कपड़े को वो डिज़ाइन करवाएंगी, सब कुछ करके मैं डिज़ाइनिंग भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे. अल्टीमेटली उसके ऑपरेशंस को वो मैनेज करें, तो उनके पास अच्छा एंटरटेनमेंट, इंटरेस्टिंग फन हो जाएगा. अभी भी जैसे मेरी अम्मी अपना सारा टाइम, आई हैव अ डॉग एंड आई हैव अ कैट. सो शी सेज द डॉग, आई डिडंट सी द कैट. सो शी सेज कि तुमने कुत्ता बिल्ली लेके मेरे ऊपर छोड़ दिए हैं, दैट्स माय कैट. क्यूट. कैन यू ब्रिंग मी वो छोटा वाला जो आपने सबको दिया है? छोटे वाले जो थे
जो महर puppies, yeah. अहमद भी लिए थे yeah I want that वो मेरे fiance के dog ने puppies दिए हैं तो we've sold एक जो them. लास्ट बचा था वो बिक गया अब नहीं, अभी तक है. मुझे ला दो प्लीज मैं आके ले जाऊँ Sure, लेकिन कुत्तों को संभालना बहुत मुश्किल होता है. मेरे पास एक हस्की ने मुझे काटा था जब से मुझे डर लग रहा है मतलब I am a dog person. I'm a dog person too. I'm actually a animal person now. I was so scared of cats कि बिल्ली वहाँ से गुजरती थी मैं यहाँ पे चीख मारती थी. मेरी खाला करती हैं. And फिर मेरी बहन ने एक दिन रट डाली कि नहीं बिल्ली. और अब हमारे घर में एक बिल्ली है. 6 साल हो गए हैं. We still have her. 2 years since we have the dog. तो मैं बताई थी कि मेरी अम्मी की अभी इंटरटेनमेंट सारी मेरा डॉग है. तो बच्चों से हट के वो आ गई. हाँ, किस बच्चे बड़े हो गए ना सारे, सब अपने अपने ओन पे हो गए हैं. मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो उधर है, मैं अपने कामों पे होती हूँ. दोनों छोटी बहनें भी, एक A levels में जा रही है, वो भी बस soon to go. दूसरी छोटी है बट वो भी इतनी अटेंशन मामा की नहीं मांगती. तो मामा के पास कोको है ना, कोको के साथ वो खेलती हैं. वो अभी भी मैं कराची आई में तो मुझे वीडियोस भेजती हैं कि कोको को बॉल से खिला रही है. कोको बहुत डिमांडिंग है, उसको हर वक्त बॉल से खेलना होता है, हर वक्त वॉक पे जाना होता है. कोको इज द कैट शी इज टॉकिंग अबाउट. नो, इट्स द डॉग. Oh, cute. I thought Coco is like a catty wala name. No. What's the cat name? The cat is Lexi and the dog is Coco. Wow, so luxurious. Yeah. Lexi is, actually cats are luxurious. Dogs are very low maintenance. No. You're saying it vice versa. Like, I'm saying vice versa? Dogs are high maintenance. They want your attention. They want you all the time. Billiyan अपने मूड से आपके पास आती हैं, अपने मूड से कहती हैं निकलो इधर से. लेक्सी का लिटरली ये पता है, अपना मूड होगा ना, आएगी पास, ऊपर भी चढ़ेगी, प्यार भी करेगी. फिर जब मैं उसको अटेंशन दूंगी ना, मैं उसको उठाऊंगी तो मुझे काट के भाग जाएगी. So it's just like bro, क्या हो रहा है. तो बिल्लियाँ काफ़ी फ़नी होती हैं. बट डॉग्स का ये है कि दे गिव यू सो मच लव कि आप कहते हैं यार ये तो मैं डिजर्व भी नहीं करता, ये मुझसे इतना प्यार करता है. नहीं, मैं अभी आपके साथ चल रही हूँ ना. हाँ. मैं उसको मुझे देते हैं. हाँ ज़रूर, आप ले लें. मेरी अम्मा ने मुझे, अच्छा मेरे पास एक आया था, वो मुझे उसका नाम नहीं पता, वो क्यूट फरी डॉग था. इट्स अ शिट्जू, अ स्मॉल छोटू पूडल या शिट्जू. या तो वो था. वो आया, मेरा दोस्त लेके आया था मेरे लिए. ही वाज लाइक अच्छा ले लो वो जा रहा है. वो आया बेचारा, आके मम्मा सो रही थी, ऑल द वे फॉर ड्राइंग रूम ही वॉच्ड मी. मैं अपने रूम में जाई थी, उसने मुझे देखा और मम्मा के रूम में जाके मम्मा के पाँव के नीचे बैठ गया. अब मेरी माँ सो रही है. इट वॉज सो फनी. माई फ्रेंड वॉज लाइक लिटरली सर पे मार रहा था कि मेरी इसकी माँ सो रही है, मैं कमरे में जाके कैसे निकालूं. पेट्स को भी पता चल जाता है कि ममता कहाँ से आती है. मेरे भी दोनों जानवर ना सुबह मेरी अम्मी की एक खिड़की और कमरे के बाहर मिलते हैं, हमारे पास नहीं आते. लेक्सी मामा का दरवाजा स्क्रैच करती है और कोको उनकी विंडो पे भौंक रही होती है. मामा कहती है लेके तुम लोग आए हो और छत पे मेरे डाल दिए. लेकिन ऐसा ही है. और मेरी माँ कहती है तो मैं पाल रही हूँ. मैंने कहा अब मेरा पालना खत्म कर दे, मैं बड़ी हो चुकी हूँ. You need to shift your interest now. So my mom is really, it seemed like yours, but your mom was like कि हाँ मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं तो इकलौती हूँ, तो मेरी माँ का सारा फोकस मेरे ऊपर होता है. अभी मेरे पास 5 कॉल आने वाली हैं दोबारा. कल 10 कॉल आई थी मेरे पास. It happens. Moms are like really cute, no? So coming back to the podcast, it's like a wholesome conversation. Acha. So we have covered how did you started, when did you started. We have covered what's the people centricity to you, how important people upskilling is. We have talked about so many moral values and how do you stay in track and how do you maintain your integrity and how important it is and what are the core values. Last we discussed very cute little thing which was bad and how healthy it's to have a work-life balance. Yes. And we have also covered one more part that I want to tap on. I'm just forgetting the point here. That we've covered so much, I don't know what to cover. Like there's so much that we can more cover, but I don't think time allows us. Time नहीं है वरना बहुत अभी और चीजें. बिल्कुल बहुत चीजें हैं. तो हम अभी लाहौर में इसको कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर हम अभी टीजर आपको दे रहे हैं. इसकी हम पॉडकास्ट 2 करेंगे जिसमें मैं अपने बाकी बिजनेसेस के बारे में बताऊंगी. ये अच्छा है. This is the idea that I like. This is the idea that I really like because अभी हमने कंटिन्यूटी पॉडकास्ट कराची से लाहौर तक. Oh wow! कराची. Give me a five. अब ये कराची में हो गई या अगली लाहौर में करते हैं? लाहौर से कराची से लाहौर, featuring Rimsha. Yeah, by Let's Talk People. Okay, great. So guys, that was it at Let's Talk People. Thank you so much for your time. Thank you so much for joining us, Rimsha. Thank you so much for having me. It was lovely having you. See you again in Lahore then. See you again at lunch, shall we now? हाँ, sure. Let's leave. Let's leave, please. अभी हमें भूख लगी है तो हम चलते हैं. आप लोग भी कुछ खाएं जाके और हमें दोबारा मिले. हम लाहौर में बहुत सारे पॉडकास्ट करने वाले हैं. Let me know who is coming to who want to join us on Let's Talk People. We would love to host you guys and we'll see you again. Thank you, Rimsha. Thank you guys. Allah Khadafis. In the world of AI and technology taking over the world,
we tend to miss people centricity and values attached to it. On Let's Talk People, we are talking culture, diversity, community building, and so much more. So join us and let's get talking.